Today we are going to discuss about the sexual reproduction in flowering plants. Already in the few lectures we have discussed about the structure of flower and male reproductive part of the flowers. Now today we will discuss about another part of the flower, that is female reproductive organs. So what is female reproductive organ of the flower? You know, the female reproductive organ of the flower is called as gynoecium. Gynoecium. Gyne means female. So the female reproductive organs. Female reproductive organ present in the flower, because you know flower is called as modified shoot developed for sexual reproduction, and in that flower androecium and gynoecium is present. Androecium is the male reproductive oral and gynoecium is the female reproductive organ, and both these organs are help in the sexual reproduction. So they are called as reproductive oral or essential oral. So among that, gynoecium is one of the reproductive organ present in the flower, and female reproductive organ contain what? Gynoecium. Literally meaning of the gynoecium is gyne means female and cm means cavity. Okay, the cavity which carry female sex organs are called as female sex organs called as gynoecium. It is the female part, female reproductive part, and it may have single pistils. Gynoecium के अंदर क्या रहता है? Gynoecium contain more than one pistils or maybe single pistils. This is the overall structure of gynoecium, and on that gynoecium, this is the structure of gynoecium. On which there is the presence of what? Pistil or carpel. Gynoecium का individual member जो है, individual member of gynoecium is called as carpel or pistil. Carpel or pistil. Gynoecium is called as female reproductive organ, and this is called as carpel or pistil. And you know, carpel and pistil consist of three parts. One is stigma, second is style, and third is ovary. Carpel consists of basically three parts. Stigma, that is the flat portion which receives the pollen grain. Then style, long hollow tubes help in the penetration of pollen tube fluid, and ovary is the swollen part, basal part, swollen basal part which carry one or many ovule units. ओवरी क्या है? swollen basal part है, जिसके अंदर कभी कभी एक ओव्यूल है तो कभी कभी मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. कहाँ पे? ओवरी के अंदर. ओके, सो देयर इज द चैम्बर प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल. ओवरी के अंदर जो चैम्बर रहता है उसको हम बोलते हैं लॉक्यूल. द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड एज locules. So according to that particular locules, different carpels are attached. Okay, and you know there is the locules and there is the attachment of ovule. Okay, inside the ovary what have? Ovary contain ovule. Sometimes they have one ovule called as monocarpellary ovary, and sometimes they have many ovule called as polycarpellary ovary. Means number of ovaries are changed from flower to flowers. So gynoecium is called as female reproductive organ, female reproductive part, and it has pistil in it, and single pistil contain three parts. The pistil may be called as carpel, and the carpels are of two types. Multicarpellary means single ovary having single carpels are called as monocarpellary, and if they have many carpel are called as multicarpellary. Okay, then multicarpellary, the pistil may be have fused. multicarpellary में और दो टाइप है. अगर pistil फ्यूज है तो उसको हम बोलेंगे syncarpus. Syn means combined, fuse. Multicarpellary, multi मतलब many carpels.
जब मेनी कार्पेल्स है उसमें और दो टाइप है, सिंक कार्पस मीन्स फ्यूज्ड कार्पेल्स एंड अपोकार्पस मीन्स फ्री कार्पेल्स, ठीक है ना। मल्टी कार्पेलरी में और दो टाइप्स, सिंक कार्पस का मतलब जब कार्पेल फ्यूज होते हैं उसको सिंक कार्पस बोलते हैं, और जब कार्पेल फ्री रहते हैं उसको हम बोलते हैं अपोकार्पस। सो अकॉर्डिंग टू फ्लावर टू फ्लावर क्या होता है, कार्पेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और तो बोला था मैंने गाइनोसिम के अंदर जो कार्पेल है उसकी बेसिक तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, तो पहले गाइनोसिम के बारे में डिस्कशन करते हैं, कार्पेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, एंड टिश्यू जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। सो ओवरी के अंदर जो कैविटी है, मैंने पहले बोला आपको अंदर कैविटी रहती है, और कार्पेल के अंदर कौन कौन से पार्ट है, तीन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सो व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन ऑन द ईच। स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब जब पोलन ग्रेन आते हैं तो स्टिग्मा के ऊपर आके गिरते हैं ना। स्टिग्मा कैसा रहता है फिर? स्टिग्मा इज जनरली स्टिकी एंड रफ रहता है स्टिग्मा, दैट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन ऑन इट, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके गिरते हैं। ओके, देन स्टिग्मा के अंदर या सबसे ऊपर का पार्ट मैंने बोला आपको स्टिग्मा, जहां पे आके गिरते हैं कौन? स्टिग्मा के ऊपर आके कौन गिरते हैं? पोलन ग्रेन। ओके, और ये नाक्यूल है ओवरी के अंदर, स्टाइल है, और जब भी स्टिग्मा के ऊपर आके पोलन ग्रेन गिरते हैं दे जर्मिनेट टू फॉर्म पोलन ट्यूब्स। पोलन ग्रेन गिरने के बाद स्टिग्मा के ऊपर पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, और वो पोलन ट्यूब्स स्टाइल के द्वारा नीचे जाते हैं, कहाँ पे? ओवरी की तरफ। और आपको पता है ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है ना, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ ट्रांसफर होते हैं ना। ओके, तो व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल इज नथिंग बट द इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे रहता है कौन? स्टाइल। और क्या है स्टाइल? इलॉन्गेटेड ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है, which help in the transfer of pollen tube through it. Okay, that is style. और सबसे नीचे वाला जो पार्ट मैंने बोला आपको ओवरी। So what is ovary? Ovary is the fertile part. Ovary is the basal part, swollen part, reproductive part. Okay, which contain either one or many ovule in it. ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या कम ज्यादा होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ओवरी से जब फ्रूट बनता है, ओवरी से क्या बनता है? बाद में फ्रूट बनता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ओव्यूल के अंदर क्या फॉर्म होते हैं? सीड फॉर्म होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओके, इनसाइड द ओवरी ओवरिन कैविटी प्रेजेंट। मैंने पहले बोला आपको ओवरी के अंदर क्या रहती है? कैविटी प्रेजेंट है, और उसको हम लक्यूल बोलते हैं, और लक्यूल के अंदर क्या रहता है? प्लासेंटा। व्हाट इज प्लासेंटा? ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल जहां पे अटैच होता है ओवरी के वॉल के ऊपर, दैट पार्ट इज कॉल्ड प्लासेंटा। लिसन केयरफुली, ओवरी के अंदर ओव्यूल अटैच होता है, और जहां पे ओव्यूल अटैच होता है ओवरी के वॉल के ऊपर, वहां पे कुशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। और प्लासेंटा के अरेंजमेंट कैसी है? अटैचमेंट कैसी है प्लासेंटा की? किसके ऊपर? ओवरी के वॉल के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दैट हमने 11th क्लास में प्लासेंटेशन स्टडी किया है मॉर्फोलॉजी प्लांट में। एक्सियल प्लासेंटेशन, पैराइटल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन, ये प्लासेंटेशन स्टडी किया है। व्हाट इज प्लासेंटेशन? अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द वॉल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन। सिंपल, मतलब ओव्यूल जो है ओवरी के वॉल के ऊपर अटैच होता है, और उसको हम बोलते हैं प्लासेंटेशन। और प्लासेंटा मतलब क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर कि जो ओवरी को और ओव्यूल को दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उसको बोलते हैं प्लासेंटा, या प्लासेंटेशन भी बोलते हैं ना। प्लासेंटा और प्लासेंटेशन, एंड अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा ओव्यूल कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया। प्लासेंटा के ऊपर क्या होता है? फिर प्लासेंटा के ऊपर क्या होता है? डेवलप होता है कौन? ओव्यूल, और
और ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया। ओके, ओव्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग? ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजिया। ओके, कहां पे? प्लासेंटा के ऊपर डेवलप होता है कौन? ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम डेवलप होता है। और आपको पता होगा कि ओव्यूल के पार्ट है, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल। ओके, यही ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं बड़ा दिखा रहा हूं यहाँ पे निकाल के, यही स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, उसके एंलार्ज करके दिखा रहा हूं मैं खाली बस। ओके, ओव्यूल के अंदर कौन कौन से पार्ट है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जब ओव्यूल मैच्योर होता है तो ओव्यूल ऐसे दिखता है आपको। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर अनाट्रोपस ओव्यूल। ये क्या है? अनाट्रोपस ओव्यूल है, मैच्योर ओव्यूल है। ओके, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में, टिपिकल एंजियोस्पर्म में आपको दिखता है कौन सा ओव्यूल? अनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, टिपिकल एंजियोस्पर्म में, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में अनाट्रोपस ओव्यूल आपको मिलता है। एंड ओव्यूल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। सिंगल ओव्यूल को कहते हैं, सिंगल ओव्यूल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। एंड नंबर ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी मे बी वेरीज। ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या बदलती है। जैसे कि मैं बोला आपको, वन ओवरी कंटेन वन ओव्यूल। फॉर एग्जांपल, व्हीट है, पैडी है, मैंगो है, इसमें एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल रहता है। इसका मतलब एक फ्रूट के अंदर एक ही सीड फॉर्म होता है। इसमें व्हीट में, पैडी में, मैंगो में, एंड मेनी सीड्स आर आल्सो फॉर्म इन सम प्लांट्स, सम फ्रूट्स, सम ओवरी। कुछ ओवरी के अंदर मेनी ओव्यूल अटैच होते हैं। इसका मतलब मेनी सीड फॉर्म होते हैं। कहां पे? फ्रूट के अंदर। उसको हम बोलते हैं पॉलीकार्प या मल्टी कार्पेलरी ओवरी। उसमें एग्जांपल है पपाया, जहां पे एक ओवरी के अंदर, एक फ्रूट के अंदर ज्यादा सीड फॉर्म होते हैं। पपाया है, या फिर वाटरमेलन है, वाटरमेलन तरबूज, या फिर ऑर्किड्स है। इन सभी प्लांट में क्या होता है? एक ओवरी के अंदर मेनी ओव्यूल फॉर्म होते हैं। इसका मतलब एक फ्रूट के अंदर मेनी सीड फॉर्म होते हैं ना। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पहले मैंने बोला आपको, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो नीचे का अटैचमेंट है उसका, उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज आल्सो कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ ओव्यूल। स्टॉक, STALK, स्टॉक मींस क्या? जहां पे अटैच होता है कौन? ओव्यूल। कहां पे? ओवरी के वाल के ऊपर। उस स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस। और ये जो ऊपर का पार्ट है ओव्यूल का, ओके, ऊपर का जो पार्ट है सोलन पार्ट ओव्यूल का, दैट सोलन पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं बॉडी। मतलब हर एक ओव्यूल के अंदर बेसिकली दो पार्ट फॉर्म होते हैं। नीचे का जो पार्ट है स्टॉक, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, और जो ऊपर का सोलन पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी। और ये भी आपको पता होगा, जहां पे बॉडी और फ्यूनिकल अटैच होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद बॉडी। और अनाट्रोपस ओव्यूल में याद रखो, हाइलम के ऊपर एक स्कार फॉर्म होता है। ओके, मतलब जो रिमेनेंट है सीड के ऊपर, उसको बोलते हैं रैफे। अनाट्रोपस ओव्यूल के ऊपर ऐसा रैफे बनता है, रिमेनेंट है, स्कार है, जहां पे क्या होता है? ऊपर का पार्ट है, हाइलम के ऊपर का पार्ट रिमेनेंट है, उसको हम बोलते हैं रैफे भी बोलते हैं। ठीक है ना? एंड जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड ओव्यूल इज कॉल्ड एज हाइलम। आ गया? बॉडी, नीचे का, ऊपर का पार्ट बॉडी है, नीचे का पार्ट स्टॉक है, फ्यूनिकल है, ये दोनों का अटैचमेंट को बोलते हैं हाइलम। एंड ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड एज इंटरमेंट। लिसन केयरफुली, ओव्यूल के ऊपर जो दो कवरिंग है उसको बोलते हैं इंटरमेंट। याद रखो, जनरली एंजियोस्पर्म के अंदर दो कवर रहते हैं ओव्यूल के ऊपर, इसलिए उसको बोलते हैं बायटेक्निक ओव्यूल। और जिम्नोस्पर्म में आपको पता होगा सिंगल कवर रहता है, इसलिए उस ओव्यूल को बोलते हैं यूनिटेक्निक। राइट ना? एंजियोस्पर्म के अंदर
ओव्यूल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवर रहता है, बाहर से प्रोटेक्शन करता है, उसको बोलते हैं बायटेक्निक इंटेगुमेंट्स या बायटेक्निक ओव्यूल बोलते हैं। दो इंटेगुमेंट्स है और याद रखो इस इंटेगुमेंट का कन्वर्शन किसमें होता है, बाद में सीड कोट में होता है। आउटर इंटेगुमेंट इनटू टेस्टा और इनर इंटेगुमेंट इनटू टेगमन होता है ना। ओके, क्योंकि अगर ओव्यूल का कन्वर्शन सीड में हो रहा है, ओव्यूल का कन्वर्शन अगर सीड में हो रहा है तो सीड का जो ओव्यूल का जो कवर है इंटेगुमेंट्स, उसका कवर सीड के कवर में हो जाएगा कन्वर्ट और उस सीड के कवर को बोलते हैं टेस्टा, आउटर कवर टेगमन, इनर कवर बोलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। एक्सेप्ट इंटेगुमेंट सभी तरफ है, याद रखो इंटेगुमेंट का ओरिजिन कहाँ है, यहाँ से, तो इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग चला जा, चला जा या कलेजा। ओके, व्हाट इज कलेजा? बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जहां पे ओव्यूल का बेस है, जहां से इंटेगुमेंट स्टार्ट होते हैं फॉर्म होना, जब फॉर्मेशन होता है इंटेगुमेंट का, उसको बोलते हैं चला जा। और एक ऐसी जगह है कि जहां पे इंटेगुमेंट फॉर्मेशन नहीं होता, ओपनिंग रहता है इंटेगुमेंट के अंदर, उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। लिसन, स्मॉल ओपनिंग इज प्रेजेंट हियर, there is no integument in that place, called as micropyle. माइक्रो, स्मॉल, पाइल, गोल। और इस माइक्रोपाइल के भी अलग अलग फंक्शन है। माइक्रोपाइल के फंक्शन क्या हो सकते हैं? माइक्रोपाइल ऐसा प्लेस है कि जिसके द्वारा पोलन ट्यूब अंदर एंट्री करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। एक दूसरा फंक्शन, जब ओव्यूल का कन्वर्शन सीड में होता है तो माइक्रोपाइल इज नथिंग बट द ओपनिंग ऑफ सीड, और उस ओपनिंग के द्वारा क्या होता है, वाटर एंड ऑक्सीजन एंट्री करता है, दो। और तीसरा फंक्शन माइक्रोपाइल का ये है कि जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो माइक्रोपाइल ऐसा पोर है कि जहां से रेडिकल बाहर आता है और उसका कन्वर्शन रूट में होता है। इन दैट वे माइक्रोपाइल हैव थ्री फंक्शंस। और माइक्रोपाइल क्या है? एक ऐसे ओपनिंग है कि जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है एंड अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड पे कौन है? बेस है ओव्यूल का, उसको बोलते हैं हम लोग चला जा। क्या बोलते हैं? चला जा इन द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओके, देन enclosed with the इंटेगुमेंट्स देयर आर मास ऑफ सेल। इंटेगुमेंट के अंदर क्या है? इंटेगुमेंट के अंदर क्या है? एक मास है सेल का। ओके, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू। इंटेगुमेंट के अंदर जो सेल का मास है, मतलब बिफोर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होने के पहले यहाँ पे मास रहता है सेल का एंड दैट मास इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। रिमेंबर, न्यूक्लियस, नॉट अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस नाउ? न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज नथिंग बट द न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूक्लियस क्या है? डिप्लॉयड सेल का टिश्यू है, जहाँ पे डिप्लॉयड सेल रहते हैं और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है और यहाँ पे प्रॉपरली फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है, इसलिए उसको बोलते हैं द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर होता है फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में आपको बाद में बताऊंगा। इंटेगुमेंट के अंदर याद रखो एक मास रहता है सेल का, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल इन इट। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है, इसलिए वो क्या करता है? डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट को, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को, उसके अंदर रहने वाले सेल को नरिश करने का काम करता है। कौन? न्यूक्लियस। एंड इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो सैक। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है। और एम्ब्रियो सैक क्या है? नॉर्मल एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 3 सेल कॉल्ड एज एंटीपोडल्स, जो हैप्लॉइड होते हैं। बाद में सेंटर में जो सेल होते हैं, सेंटर में जो सेल है उसके ऊपर वॉल नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि डिप्लॉयड होता है। और थर्ड, जो माइक्रोपाइल की तरफ रहते हैं 3 सेल, माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 सेल है उसमें जो सेंटर की कौन है? एक है जो हैप्लॉइड है, और दो बाजू के दो कौन है? ये दो साइड के दो सिस्टर सेल रहते हैं,
ओके, एक के बाजू में दो सेल रहते हैं, उसको सिस्टर सेल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। ये भी अपराध होते हैं ना। और ये याद रखो, एक प्लस सिनर्जिड्स, ये दोनों को मिला को बोलते हैं हम लोग एक apparatus। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हप्लॉइड एक सिंगल सेल है और उसके साथ दो सिनर्जिड सेल, ये तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग एक apparatus। क्वेश्चन आया था एग्जाम में एक apparatus के ऊपर। ओके, तो एंटीकोडन 3 है, सेकंड न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियस है और 3 सेल एक apparatus के अंदर है। इसका मतलब ये हो गया एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक का हम दूसरा नाम देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। Embryo sac is also called as female gametophyte, and remember that female gametophyte is generally 7-celled and 8 nucleate type। कौन से 7 सेल है? 7 सेल कौन से? एंटीकोडा के 3 सेल, एक apparatus के अंदर के 3 सेल और सेंटर का एक सिंगल सेल, इसका मतलब 7 सेल है। और सेल का कॉम्बिनेशन कैसा है? फिर सेल का कॉम्बिनेशन है 3+1+3 है सेल का कॉम्बिनेशन। और न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन कैसा है? 3+2+3 है। कौन? न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस कितने हैं? 1। न्यूक्लियस कितने हैं? 8 है। और सेल कितने हैं? सेल कितने हैं? 7 है ना। सो इट इज कॉल्ड एज 7-celled and 8 nucleated fully developed embryo sac, or called as female gametophyte, and ovule generally has single embryo sac in it। नॉर्मल एक ओवल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। ओके, एंड फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर, क्योंकि मेगास्पोर एक डेवलप होता है एक ही मेगास्पोर से क्या बनता है? एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ओके, और उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ओव्यूल। ओके, बाद में मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? ओव्यूल के अंदर के पार्ट तो आपको पता चल गया अभी, ओव्यूल के अंदर कौन कौन से पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आपको समझ में आया। हर एक पार्ट का अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फंक्शन है। बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओव्यूल के अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है। ओके, सो रैफे भी है यहाँ पे। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल जो है फ्यूनिकल प्रेजेंट है। ओके, याद रखो, अगर ये फ्यूनिकल नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ससाइल ओव्यूल। जिस प्लांट में फ्यूनिकल एब्सेंट है, ये फ्यूनिकल एब्सेंट है, उसको बोलते हैं ससाइल ओव्यूल। और रेयर होता है, रेयर मतलब बहुत कम प्लांट में होता है। और नॉर्मली प्लांट के अंदर ओव्यूल के अंदर ससाइल मतलब नॉर्मली ओव्यूल के अंदर फ्यूनिकल प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ओव्यूल के अंदर फ्यूनिकल प्रेजेंट होता है। कुछ ओव्यूल है कि जिसके अंदर फ्यूनिकल नहीं है, वो रेयर है। और अगर कैसे रहा तो उसको हम बोलते हैं ससाइल ओव्यूल। ससाइल का मतलब विदाउट स्टॉक, विदाउट फ्यूनिकल बोलते हैं। और बाकी के पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। फ्यूनिकल एंड हाइलम क्या है? हाइलम एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे अटैचमेंट होता है बॉडी और फ्यूनिकल का। और रैफे इज द एक्सटेंशन ऑफ हाइलम इन द अनाट्रोपोसोइड कॉल्ड एज रैफे। मैंने बोला आपको हाइलम का एक्सटेंशन होता है, या हाइलम जो है वो एक्सटेंड होता है और उसको हम बोलते हैं रैफे। और रैफे जो है मोस्टली अनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर आपको मिलता है ना। ये अनाट्रोपस ओव्यूल है, कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, जिसके अंदर आपको रैफे दिखता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसके अंदर रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट है। और एम्ब्रियो सैक इज सिचुएटेड इनसाइड द ओव्यूल या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक का या फीमेल गैमेटोफाइट का ओरिजिन होता है। मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट बताने वाला हूं अभी। मैं आपको अभी मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है और मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ओके, बट पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। और एम्ब्रियो सैक सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड टू टाइप्स ऑफ ओव्यूल इन द इंटीग्यूमेंट्स। मैंने पहले बोला आपको 2 टाइप का ओव्यूल है। अगर इंटीग्यूमेंट 2 है तो उसको बोलते हैं बायोटेक्निक ओव्यूल, वो एंजियोस्पर्म के अंदर रहता है। बायोटेक्निक ओव्यूल जो है 2 इंटीग्यूमेंट वाला, वो एंजियोस्पर्म में रहता है। और मोनोटेक्निक या यूनिटेक्निक ओव्यूल जो है सिंगल इंटीग्यूमेंट वाला, वो रहता है जिम्नोस्पर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस ओव्यूल में
दो इंटीग्यूमेंट है उसको बोलते हैं बायोटेक्निक ओव्यूल जो एंजियोस्पर्म में रहता है, और जिस ओव्यूल में एक इंटीग्यूमेंट है उसको बोलते हैं यूनिटेक्निक ओव्यूल, वो रहता है जनरली जिम्नोस्पर्म में, या फिर और कुछ प्लांट है उसमें भी रहता है। ओके, यूनिटेक्निक ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में है, बायोटेक्निक एंजियोस्पर्म में है, और ऐसे भी कुछ प्लांट है कि जिसमें इंटीग्यूमेंट ही नहीं है, विदाउट इंटीग्यूमेंट, और टेक्निक, और मींस विदाउट नो इंटीग्यूमेंट एट ऑल, उसको बोलते हैं अटेक्निक ओव्यूल, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ अटेक्निक ओव्यूल इज अटेक्निक ओव्यूल का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज सैंटलम। सैंटलम इज एग्जांपल ऑफ अटेक्निक ओव्यूल्स। ओके, देन टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस के अकॉर्डिंग ओव्यूल के दो पार्ट बनाए हमने, कौन कौन से? यूनिन्यूसिलेट एंड क्रासिन्यूसिलेट। ओव्यूल के अंदर जो न्यूसिलस है उसके अकॉर्डिंग दो टाइप बनाए हैं, ट्यूनिन्यूसिलेट एंड क्रासिन्यूसिलेट, अकॉर्डिंग टू न्यूसिलस नेचर। न्यूसिलस क्या है? मैंने बोला आपको न्यूट्रिटिव टिश्यू है जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। तो न्यूसिलस कैसा है उसके अकॉर्डिंग ओव्यूल के दो पार्ट बने हैं, कौन कौन से? ट्यूनिन्यूसिलेट एंड क्रासिन्यूसिलेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीड के अकॉर्डिंग। सो व्हाट इज ट्यूनिन्यूसिलेट? इट इज द न्यूसिलस आइदर लेस डेवलप्ड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर, ओके, गैमेटोफाइटली ग्रुप्स। अगर न्यूसिलस लेस डेवलप है और उसका अगर सिंगल लेयर है, याद रखो ट्यूनिन्यूसिलेट का बता रहा हूं, ट्यूनिन्यूसिलेट का बता रहा हूं, अगर न्यूसिलस है, सिंगल लेयर है, लेस डेवलप है, तो उसको बोलते हैं ट्यूनिन्यूसिलेट। ओके, और वो कहां रहता है? रेयरली मिलता है कुछ प्लांट में। ओके, कौन से प्लांट में? एग्जांपल गैमोपेटली ग्रुप्स। गैमोपेटली नाम की जो प्लांट है जिसके अंदर पेटल्स फ्यूज है उसको गैमोपेटली ग्रुप बोलते हैं, उसके अंदर ट्यूनिन्यूसिलेट टाइप का नेचर रहता है। सुना है ट्यूनिन्यूसिलेट? एक तो न्यूसिलस लेस डेवलप है और वो सिंगल लेयर से बनता है, उसको बोलते हैं ट्यूनिन्यूसिलेट। और क्रासिन्यूसिलेट क्या है? क्रासिन्यूसिलेट में न्यूसिलस फॉर्म मैसिव टाइप मेनी लेयर्स। न्यूसिलस के अंदर मैसिव टाइप का न्यूसिलस रहता है, मतलब ज्यादा लेयर डेवलप होते हैं, सोलन रहता है न्यूसिलस, रिजर्व फूड मटेरियल भी ज्यादा होता है उसके अंदर, उसको क्रासिन्यूसिलेट टाइप बोलते हैं, एंड मेनी लेयर्स फॉर्म होते हैं। वो कहां रहता है? पॉलीपेटली ग्रुप्स ऑफ मोनोकॉट। क्रासुलेट टाइप ऑफ न्यूसिलस फाउंड इन द पॉलीपेटली ग्रुप। पॉलीपेटली मतलब जिस प्लांट के फ्लावर के पेटल्स फ्री है, जिस फ्लावर के पेटल फ्री है उसको पॉलीपेटल्स बोलते हैं। और यूनिन्यूसिलेट का एग्जांपल मैंने बोला था गैमोपेटली ग्रुप मतलब पेटल फ्यूज, और क्रासिन्यूसिलेट का एग्जांपल बोला है पॉलीपेटल ग्रुप्स मतलब पेटल फ्री। और दूसरा एग्जांपल मैंने बोला आपको मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट में ऐसी कंडीशन होती है, क्रासिन्यूसिलेट टाइप का ओव्यूल फॉर्म होता है मोनोकॉट में भी और पॉलीपेटली में। टाइप्स ऑफ ओव्यूल बाद में क्या है? एक्चुअली ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, कौन सा टाइप्स ऑफ ओव्यूल, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ओके, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ओव्यूल? बेसिकली आप देखते हो तो ओव्यूल के अंदर 6 टाइप के ओव्यूल है प्लांट के अंदर। ओके, एंजियोस्पर्म जो है या ओव्यूल बनाने वाले जो प्लांट है उसमें 6 टाइप के ओव्यूल फॉर्म होते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बता रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बेसिकली ओव्यूल कौन कौन से टाइप के? देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल है दैट इज आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस एक एक देखते हैं आर्थोट्रोपस, और वो कहां पे मिलता है? जनरली मिलता है जिम्नोस्पर्म में, और बाकी जो कुछ प्लांट है उसमें आर्थोट्रोपस ओव्यूल मिलता है। और आर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या रहता है? आर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है याद रखो। ओके, जहां पे ये क्या है? चला जा, ये क्या है? फ्यूनिकल, और ये क्या है? माइक्रोपाइल, है ना? माइक्रोपाइल, चला जा एंड फ्यूनिकल, अगर तीनों एक ही वर्टिकल लाइन के अंदर है, कौन कौन? माइक्रोपाइल, चला जा, फ्यूनिकल सिंगल वर्टिकल लाइन में है तो उसको बोलते हैं आर्थोट्रोपस ओव्यूल। और वो कहां पे मिलता है? जिम्नोस्पर्म में एक, और पाइपरेसी एंड पॉलीगोनेसी प्लांट के नाम है।
जिम्नोस्पर्म, पाइपरेसी एंड पॉलीगोनेसी, ये 3 प्लांट है, उसमें आपको ऑर्थोट्रॉपस ऑयल मिलता है। ओके, नेक्स्ट हेमी अनोट्रॉपस क्या है? सेकंड टाइप ऑफ ऑयल पढ़ना है हेमी अनोट्रॉपस ओव्यूल। हेमी का मतलब क्या है? हाफ अनोट्रॉपस ओव्यूल है, जहां पे क्या होता है, या ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ओके, ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है, दिस इज एम्ब्रियो सैक, दिस इज व्हाट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होते हैं? ये ऐसे इंटरमेंट फॉर्म होते हैं। ओके, दिस इज द इंटरमेंट्स, और ये ओव्यूल इस तरीके से बनता है, मतलब अनोट्रॉपस में नहीं है, ऑर्थोट्रॉपस में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ट्यूनिकल और बॉडी के अंदर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, राइट एंगल में फॉर्म होता है ना, राइट एंगल में ऊपर बॉडी है, नीचे ट्यूनिकल है, तो दोनों के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, सो कॉमनली नोन एज हॉरिजॉन्टल ओव्यूल्स। हेमी अनोट्रॉपस ओव्यूल को बोलते हैं, हेमी मतलब हाफ अनोट्रॉपस, अनोट्रॉपस में नहीं है और ऑर्थोट्रॉपस में नहीं है, दोनों के अंदर का उसको हेमी अनोट्रॉपस बोलते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ ओव्यूल बोलते हैं, और दिस टाइप ऑफ ओव्यूल हैज 90 डिग्री एंगल बिटवीन द ट्यूनिकल एंड बॉडी, और जहां पे चलाजा माइक्रोपाइल दोनों सेम लाइन में, ये क्या है? माइक्रोपाइल, ये क्या है? चलाजा, दोनों एक लाइन में है, सिंगल लाइन में है। और एग्जांपल इसका मैं बताने जा रहा हूं, प्राइमुला एंड रैननकुलस। प्राइमुला एंड रैननकुलस आर द एग्जांपल ऑफ हेमी अनोट्रॉपस ओव्यूल। दूसरा ओव्यूल बताने जा रहा हूं मैं, अनोट्रॉपस ओव्यूल। अनोट्रॉपस ओव्यूल जो आपने अभी पढ़ा है, जो अभी मैंने आपको डायग्राम बड़ी निकाल दी थी, अनोट्रॉपस ओव्यूल की, ये सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है अनोट्रॉपस ओव्यूल में? ये एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? इंटरमेंट है, और यहाँ पे क्या होता है? फिर 180 डिग्री रोटेट होता है। इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल। मतलब यहाँ पे माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल लाई क्लोज टू द फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास आता है, और माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में चला जाता होता है, तो इसको बोलते हैं अनोट्रॉपस टाइप ऑफ ओव्यूल। मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में अप्रोक्सीमेटली 80% एंजियोस्पर्म में इस टाइप का ओव्यूल होता है। कौन सा? अनोट्रॉपस, कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल बोलते हैं इसको। ओके, इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल बोलते हैं, टिपिकल ओव्यूल बोलते हैं, और जहां पे 180 डिग्री रोटेट होता है। कौन? माइक्रोपाइल। पहले माइक्रोपाइल ऊपर था, अभी नीचे आ गया, मतलब 180 डिग्री रोटेट हो गया माइक्रोपाइल। ओके, स्टॉप, एंड हाइलम इज वेरी क्लोज टू द माइक्रोपाइल, और इसका मतलब हाइलम और माइक्रोपाइल एक दूसरे के पास आ गए ना। ये हो गया 3 टाइप का ओव्यूल, कौन कौन से? ऑर्थोट्रॉपस, हेमी अनोट्रॉपस, अनोट्रॉपस। चौथा टाइप बता रहा हूं, और ये जो है अनोट्रॉपस ओव्यूल जो है मोस्ट ऑफ द प्लांट में आता है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में मिलता है आपको। उसके एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अनोट्रॉपस ओव्यूल के बहुत एग्जांपल है, कौन कौन से? मैंने बोला आपको, अनोट्रॉपस ओव्यूल में रैपे भी होता है, रैपे। अनोट्रॉपस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे रैपे भी मिलता है आपको। ओके, और ये कहाँ मिलता है? कौन से प्लांट में? कौन से प्लांट में? सोलोनेसी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, कंपोजिटी, ये पूरे प्लांट्स है। नेक्स्ट 4 इज कैम्पिलोट्रॉपस ओव्यूल। ओके, जिसको हम कर्ड ओव्यूल बोलते हैं। कैम्पिलोट्रॉपस ओव्यूल को क्या बोलते हैं? कैम्पिलोट्रॉपस ओव्यूल 4 नंबर टाइप ऑफ ओव्यूल, 4 नंबर का ओव्यूल है। ओके, 4 नंबर टाइप ऑफ ओव्यूल कैम्पिलोट्रॉपस, कैम्पिलोट्रॉपस टाइप ऑफ ओव्यूल। यहाँ पे क्या होता है? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कैप्सुलर टाइप ऑफ ओव्यूल कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैप्सुलर टाइप ऑफ ओव्यूल बोलते हैं, और कॉमनली नोन एज कर्व्ड और बेंटेड ओव्यूल। कर्व्ड और बेंटेड ओव्यूल भी होता है ऐसा थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे ऐसा ओव्यूल थोड़ा कर्व होता है। ओके, ओव्यूल के अंदर थोड़ा कर्वेचर होता है, एंड चेलाज एंड माइक्रोपाइल स्ट्रेट होते हैं, और थोड़ा सा बेंड होता है ये। ओके, क्या होता है? ये है एम्ब्रियो सैक, और ये है ऐसा बेंड हुए वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये इंटरमेंट्स है ऐसे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमेंट्स, और इसको बोलते हैं हम लोग कैम्पिलोट्रॉपस। कैम्पिलोट्रॉपस थोड़ा सा
लोअर साइड में इसको जो होता है ओपनिंग, ओके, दिस इज कॉल्ड एज कैम्पुलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। कैम्पुलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है या ऊपर इंटरमेंट्स है, और इसको हम बोलेंगे कर्व टाइप बेंडिंग टाइप ऑफ ओव्यूल है। और इसका एग्जांपल कैप्सिला है, कैप्सिडेसी, लेग्यूमिनेसी, कुकुरफेरेसी, कैप्सिला एग्जांपल है। देन एम्फीट्रोपस ओव्यूल, नेक्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल कॉल्ड एज एम्फीट्रोपस। 5 नंबर टाइप ऑफ ओव्यूल कॉल्ड एज 5 नंबर टाइप ऑफ ओव्यूल कॉल्ड एज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं इसको, ओके। ऑर्थोट्रोपस भी नहीं है, अनोट्रोपस भी नहीं है, एम्फीट्रोपस है, कॉमन नोन एज ट्रांसवर्स ओव्यूल कहते हैं इसको। एंड ओव्यूल माइक्रोपाइलम चला जाए रिमेन स्ट्रेट एंड एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्सशू शेप्ड। एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक का जो शेप है थोड़ा हॉर्सशू शेप्ड होता है, ओके। और चला जाए माइक्रोपाइल जो है स्ट्रेट होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कर्व टाइप हो गया है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हॉर्सशू शेप हो चुका है, और ओव्यूल थोड़ा सा बेंड हो चुका है, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज, ओके, एम्फीट्रोपस ओव्यूल का और क्या क्या बताया मैंने, ट्रांसवर्स ओव्यूल बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइलम चला जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन में है, एम्ब्रियो सैक हॉर्स शेप्ड है, हॉर्सशू शेप्ड, और इसका एग्जांपल है पापावरेसी, पॉपी एंड लेमना, पॉपी एंड लेमना प्लांट है। और लास्ट 6 टाइप ऑफ ओव्यूल बता रहा हूं मैं आपको, सिरसिनोट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। ये एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूक्लियस है, ये दो क्या है, इंटरमीडिएट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ये जो ओव्यूल है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओके। जिसमें क्या होता है, देखो इस ओव्यूल में क्या होता है, इस ओव्यूल में क्या होता है, ये जो, ओके, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है, कौन सा, ये नीचे का जो स्ट्रक्चर उसको हम बोलेंगे चला जा, ये चला जा है। और ये कौन है, फ्यूनिकल, मतलब यहाँ पे फ्यूनिकल क्या है, पूरा कवर करता है किसको, बॉडी को। फ्यूनिकल टोटली कवर द बॉडी, फ्यूनिकल बॉडी को टोटली कवर करता है, क्लोज करता है, ओके। और माइक्रोपाइल ऊपर है, चला जा नीचे है, और फ्यूनिकल पूरा बॉडी को कवर करता है। कॉइल्ड ओव्यूल बोलते हैं इसको। कंप्लीट राउंड होता है किसका, फ्यूनिकल का, लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ फ्यूनिकल इसमें। एंड माइक्रोपाइल चला जा स्टेट है, हाइलम गोज अवे फ्रॉम द फ्यूनिकल, हाइलम दूर जाता है फ्यूनिकल से, ओके। एंड इन दिस वे दे फॉर्म दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और बाय एग्जांपल है कैक्टेसी या ओपनसिया, कैक्टस, ओपनसिया या कैक्टस, ये इसके एग्जांपल है ना, क्या एग्जांपल है, ओपनसिया या फिर कैक्टस, इसके एग्जांपल है। तो इस तरीके से ये ओव्यूल बनता है, इस तरीके से ओव्यूल बनता है, ठीक है ना। सो दिस टाइप ऑफ ओव्यूल, इस टाइप के ओव्यूल को हम बोलते हैं सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। बस इस तरीके से 6 टाइप के ओव्यूल मैंने आपको बताया, अलग अलग प्लांट का एग्जांपल बता के बताया। तो दिस इज टाइप ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बाद डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, दैट इज मेगा स्पोरोजेनस कैसे होता है और मेगा गैमेटोजेनस कैसा होता है, ठीक है, दैट पार्ट इज देयर। Monotropous types of ovule are the main types of ovule we have discussed in the last class. Today we are discussing about the development of megasporangium, development of ovule, or inside the ovule, you know, inside the ovule there is the formation of female gametophyte. Inside the ovule there is the formation of megaspores. Okay, so that's why development of ovule include megasporogenesis, that is formation of female gametophyte. So how megasporogenesis occur, how megaspore develop,
inside the ovule, or before that, how ovule is formed, how ovule structure is developed, very developed. You know, at the tip of pedicel what happened? At the tip of pedicel what happened? When the flower is formed, at the tip of pedicel what happened? The meristematic tissue of the plant, flower tip, okay, get changed. Meristematic tissue of the plants, meristematic tissue of the pedicel, tip of the plants get modified and they form what? Meristematic tissue get modified into two layers, epidermal layer and hypodermal layer. What they form? Two layers. This is the meristematic tissue which form two layers. Outer layer is called as epidermal tissue, epidermal layer, and inner layer is called as hypodermal layer, hypodermal layer. राइट ना? हम डिस्कस कर रहे हैं ओव्यूल कैसे डेवलप हो रहा है. मैंने बोला आपको फ्लावर का जो टिप है, पेडिसिल का जो टिप है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वहां पे दो लेयर बनते हैं, बाहर का एपिडर्मल टिश्यू और अंदर का हाइपोडर्मल टिश्यू. तो फिर होता क्या है, एपिडर्मल टिश्यू जो है उसमें डिवाइडेशन होता है, ओके, और हाइपोडर्मल टिश्यू भी डिवाइड होता है. और एपिडर्मल टिश्यू से क्या बनता है? फिर एपिडर्मल टिश्यू फर्दर ग्रो टू फॉर्म इंटुगमेंट्स and hypodermal tissue further grow to form nucellus. हाइपोडर्मल टिश्यू का ग्रो होकर क्या बनता है? डिप्लॉइड टिश्यू बनता है. हाइपोडर्मल टिश्यू ग्रो माइटोटिकली, डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस व्हाट? न्यूसिलस, जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है. मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर है जहां पे एक्चुअल मेगास्पोर डेवलप होता है. ओके, किससे बनता है? हाइपोडर्मल टिश्यू बनता है, हाइपोडर्मल लेयर से बनता है. और एपिडर्मल टिश्यू क्या बनता है? एपिडर्मल टिश्यू डेवलप्स इनटू व्हाट? टू इंटुगमेंट्स. एपिडर्मल टिश्यू क्या बनता है? आउटरमोस्ट कोट बनता है किसका? ओव्यूल का. और आपको पता होगा कि आउटरमोस्ट कोट कॉल्ड एज इंटुगमेंट्स. इसका मतलब ओव्यूल डेवलप होना स्टार्ट हो गया. पहले एपिडर्मल सेल से क्या बन गया? इंटुगमेंट बन गया जो कि ओव्यूल का कवर था. और हाइपोडर्मल सेल से क्या बन गया? न्यूसिलस बन गया ना. लिसन, जो न्यूसिलस था, ओके, जो न्यूसिलस था वो न्यूसिलस की तरफ क्या होता है? न्यूसिलस में क्या होता है? आर्चिस्पोरियल फॉर्म होती है. क्या फॉर्म होती है? न्यूसिलस के अंदर कुछ सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ थे, न्यूसिलस के अंदर कुछ सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ थे, दैट सेल डेवलप्स इनटू आर्चिस्पोरियल सेल. कौन से सेल? आर्चिस्पोरियल सेल. अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल दिखाना चाहूं, मैं यहाँ पे अगर इन्वर्टेड टाइप ऑफ अनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल दिखाना चाहूं, अनाट्रोपस ओव्यूल अगर मैं दिखाना चाहता हूं, तो मुझे ऐसे क्या मिलते हैं? ये स्ट्रक्चर मिलता है ना. तो एपिडर्मल सेल से क्या बन रहा है? इंटुगमेंट बन रहा है. हाइपोडर्मल सेल से न्यूसिलस बन रहा है. और हाइपोडर्मस के अंदर जो सेल है उस सेल को बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल. लिसन, उसमें से आर्चिस्पोरियल सेल में से क्या होता है? एक सेल बड़ी हो जाती है. किधर? माइक्रोपाइल की तरफ. आर्चिस्पोरियल सेल में जो डिप्लॉइड सेल है ना, उसमें से एक सेल जो है बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, और उसको बोलते हैं हम लोग, जो माइक्रोपाइल की तरफ है, दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल किधर है? माइक्रोपाइल की तरफ है ना. मेगास्पोर मदर सेल बड़ी हो जाती है और माइक्रोपाइल की तरफ है. एंड दैट मेगास्पोर मदर सेल, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें क्या होता है? फिर सपोज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, ये अगर मेगास्पोर मदर सेल है, कौन है ये? मेगास्पोर मदर, ओके, ये कौन है? आर्चिस्पोरियल सेल है. उसके अकॉर्डिंग न्यूसिलस है, उसके मतलब सराउंडिंग है, और उसके सराउंडिंग कौन है? इंटुगमेंट है. और ये मेगास्पोर मदर सेल जो थी, मेगास्पोर मदर सेल जो थी, जो डिप्लॉइड थी ना, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल कैसी थी? डिप्लॉइड सेल थी. उस मेगास्पोर मदर सेल से क्या होता है? फिर सिंगल मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस,
ओके, और मियोसिस होने के बाद एक मेगास्पोर से क्या बनते हैं, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 मेगास्पोर इन अ लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड, टेट्राड का मतलब क्या है, 4। एक मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन होने के बाद 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। नाउ लिसन, अभी याद रखो ये जो मेगास्पोर टेट्राड बन चुका है, कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर ये जो मेगास्पोर टेट्राड बन चुका है, ओके ना। सो इसमें क्या होता है, मेगास्पोर टेट्राड जो बनता है, यहाँ पे अगर देखते हो आर्थिस्पोरियल सेल में और डिवाइडेशन हो जाता है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल एंड प्राइमरी पैराइटल लेयर। आर्थिस्पोरियल सेल जो है उसके 2 लेयर बनते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो क्या बनाते हैं, मेगास्पोर बनाते हैं ना। आर्थिस्पोरियल सेल में से जो इनर लेयर है या ऊपर का लेयर है वो प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल डेवलप करता है, और दूसरा जो डेवलप करता है प्राइमरी पैराइटल लेयर। प्राइमरी पैराइटल लेयर जो कि बाहर के पार्ट डेवलप होता है, स्पोरोजेनस के बाहर, मतलब क्या था, न्यूक्लियस, इंटरमेंट, चलाजा, फ्यूनिकल, मतलब बाकी के पार्ट जो इसके ओइल के, वो बाकी के पार्ट डेवलप होते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन गए, 4 मेगास्पोर बन गए, ओके। आर्थिस्पोरियल सेल से होता है सब कुछ, क्या क्या हुआ सब में, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 2 लेयर, एपिडर्मल लेयर, हाइपोडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर से इंटरमेंट बना, हाइपोडर्मल सेल से क्या बना, स्पोरोजेनिक टिश्यू बना, आर्थिस्पोरियल सेल बने। आर्थिस्पोरियल में से ऊपर का पार्ट प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल से क्या बना, मेगास्पोर मदर सेल बना, और प्राइमरी पैराइटल लेयर से क्या बना, कवर बना, किसका, ओवल का, ओके। अभी अगर आप डेवलपमेंट आगे चाहते हो, कैसी होती है देखना चाहते हो, तो फिर ये जो 4 मेगास्पोर्स है, कितने मेगास्पोर है, ये 4 मेगास्पोर है जो लीनियर फैशन में अरेंज हो चुके हैं ना, उसमें से याद रखो, उसमें से एक ही मेगास्पोर जो कि चलाने की तरफ रहता है वो फंक्शन रहता है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर only 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल which is present towards चलाजा लेन, एंड बाकी के 3 क्या हो जाते हैं, फिर रिमेनिंग 3 मेगास्पोर गेट डीजेनरेट्स। ये तीनों क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ऊपर का एक क्या है, ऊपर का एक क्या बनता है, फंक्शनल मेगास्पोर बनता है ना। तो यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस है, कहां से कहां तक, मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना, राइट ना। मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर होते हैं, एंड यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल कितना डेवलप होता है बोला मैंने, मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होता है माइक्रोपैलेट की तरफ, और उससे फिर डिवाइड होने के बाद थारे के साथ मेगास्पोर मदर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, और फिर 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल रिमेनिंग 3 गेट डीजेनरेट्स। रिमेनिंग 3 क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड फंक्शनल मेगास्पोर जो है उससे बनता है कौन, फीमेल गैमेटोफाइट। लिसन, फंक्शनल मेगास्पोर जो है उससे क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है ना। इससे एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से बाद में फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। कैसे डेवलप होता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है देखेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस आपको क्लियर हो गया। 4 मेगास्पोर में से आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। तो इसका मतलब मियोसिस कितने हो गए, यहाँ पे मियोसिस एक ही हो गया, एक ही मियोसिस हो गया, और 4 मेगास्पोर बन गए ना। मगर अभी ये मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियस था, इसके अंदर फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर एक ही न्यूक्लियस था जो कि हैप्लॉइड था ना, हैप्लॉइड था। और ये फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होता है, फिर अब ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड होता है कैसे, बाय माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस फर्स्ट
फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस फर्स्ट होता है और माइटोसिस फर्स्ट होने के बाद एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे? 2। फर्स्ट माइटोसिस हो गया, देन माइटोसिस सेकंड होता है, 2 से कितने बनते हैं? 2 न्यूक्लियस से कितने बनते हैं? 4। जो 2 पोल की तरफ 2 है, अलग अलग पोल की तरफ, एंड देन माइटोसिस थर्ड माइटोसिस होने के बाद कितने बनते हैं? 4। हर एक पोल की तरफ 4 न्यूक्लियस बनते हैं ना। इसका मतलब फंक्शनल मेगास्पोर में एक ही न्यूक्लियस था, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक, क्योंकि 4 मेगास्पोर में से एक ही मेगास्पोर काम कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। अगर 2 मेगास्पोर काम करते उसको बोलते हैं बाइस्पोरिक, अगर 4 मेगास्पोर काम करते उसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक। तो सिंपली है, आपको पता है अगर 1 मेगास्पोर काम कर रहा है, 1 मेगास्पोर फंक्शन है तो कितने माइटोसिस हो रहे? 3 माइटोसिस हो रहे। अगर 2 मेगास्पोर फंक्शन होते तो 2 माइटोसिस होते, और 4 मेगास्पोर का फंक्शन होते तो खाली 1 माइटोसिस होता, क्योंकि अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है 1 न्यूक्लियस बनाने का। अपना टारगेट क्या था? 1 न्यूक्लियस बनाने का। फाइनली क्या होता है? इस तरीके से फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर के न्यूक्लियस डिवाइड होते होते 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बनते हैं, और जो 8 न्यूक्लियस बनते हैं वो न्यूक्लियस अभी अरेंज होते हैं। अभी तक जो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, जिसके ऊपर शेल वॉल नहीं था। अभी हर एक न्यूक्लियस के ऊपर क्या आ जाएगा? हर एक न्यूक्लियस के ऊपर क्या आ जाएगा? शेल वॉल आ जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा? फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस रीअरेंज होते हैं, सेल रीअरेंज होते हैं। याद रखो, ये है ऊपर का चलादलेन, ये है नीचे का माइक्रोपाइलोरेन। ऊपर का चलादलेन है, ये माइक्रोपाइलोरेन है। चलादलेन इसको क्या बोलते हैं? चलाजा। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। तो याद रखो, फंक्शनल मेगास्पोर माइक्रोपाइल की तरफ डेवलप हुआ था। मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोपाइल की तरफ डेवलप हुआ था। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेगास्पोर मदर सेल जो है माइक्रोपाइल की तरफ डेवलप हुआ था, और फंक्शनल मेगास्पोर जो है चलादलेन की तरफ का फंक्शन होता है। माइक्रोपाइल की तरफ के 3 डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर बाद में फिर क्या होता है? चलादलेन से 3 न्यूक्लियस अरेंज हो जाते हैं ऐसे। माइक्रोपाइलोरेन में भी 3 न्यूक्लियस अरेंज हो जाते हैं। और आपको पता होगा जो चलाजा के इनके तरफ के 3 है उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। द ग्रुप ऑफ 3 हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट टुवर्ड्स चलाजा इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। बाद में ग्रुप ऑफ 3 सेल्स प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलोरेन। ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलोरेन है, जिसमें सेंटर में क्या रहता है? माइक्रोपाइलोरेन में सेंटर में क्या रहता है? सेंटर में है 1, और 2 साइड में 2 कौन है? 2 साइड में 2 है सिलिंड्रिड्स। ओके, दोनों भी हैप्लॉइड है, एक भी हैप्लॉइड है, सिलिंड्रिड भी हैप्लॉइड है, और ये दोनों को मिला क्या कहते हैं? सेंट्रल लेग एंड 2 साइडेड सिलिंड्रिड्स। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ये दोनों को मिला के बोलते हैं एक apparatus बोलते हैं। ओके, इसमें एक जो हैप्लॉइड एक है, गैमेट है, फीमेल गैमेट, और सिलिंड्रिड जो है वो सिस्टर सेल है, ऐसे बनता है। और सेंटर में जो 2 न्यूक्लियर रहेंगे ना, इधर का एक सेंटर में आया, इधर का एक सेंटर में आया, चलादलेन का एक सेंटर में आया, माइक्रोपाइलोरेन का एंड का एक सेंटर में आया, और सेंटर में आके क्या बन गया? दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आते हैं, फ्यूज नहीं होते। तो ये दोनों का मिला के क्या होता है? फिर ये दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लिया। क्यों बोलते पोलर न्यूक्लिया? क्योंकि वो पोल से आए ना, पोल से आए इसलिए पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं, और बाद में फ्यूज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। और याद रखो, सेकेंडरी न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल नहीं रहती। सेकेंडरी न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल नहीं रहती, तो इस तरीके से क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक बन गया। और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक इज आल्सो कॉल्ड एज फुल्ली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट।
एम्ब्रियो सैक का और क्या नाम है? एम्ब्रियो सैक इज आल्सो कॉल्ड एज फुल्ली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इस तरीके से एम्ब्रियो सैक सिंगल सेल से बनता है, सिंगल स्पोर से बनता है, सिंगल मेगास्पोर से बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक बोलते हैं ना। ओके, ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया? ओके, आर्चिस्पोरियल सेल से इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बन गया और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से क्या बन गया? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में म्योस्पोर के मेगास्पोर बन गया और मेगास्पोर में क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक बनता है, जो कि हैप्लॉइड है ना। एम्ब्रियो सैक का नेचर कैसा है? हैप्लॉइड है ना। तो ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। मेगास्पोरोजिनस आपको क्लियर हो चुका है, लीनियर टेट्राहेड्रल बनता है। ओके, और डायग्राम आपको बताया मैंने, और ये जो डायग्राम मुझे बताए दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये जो डायग्राम अभी बोर्ड पे निकाली है मैंने, ओके, जो बोर्ड के ऊपर डायग्राम है दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। अगर मेगास्पोर बनते हैं तो मेगास्पोरोजेनेसिस, और फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है तो मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं उसको। ओके, और इसलिए ये डेवलपमेंट जो है मोनोस्पोरिक बोलते हैं इसको। न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शन मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। फंक्शन मेगास्पोर के अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होता है माइटोटिकली। 1 से 2 बन गए, 2 न्यूक्लियस से बाद में 4 हो गए, 4 से बाद में 8 होते हैं। तो याद रखो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि फुल्ली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस चाहिए, तो याद रखना एक मियोसिस चाहिए। फुल्ली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट के लिए क्या चाहिए? 1 मियोसिस चाहिए और 3 माइटोसिस चाहिए। कंफर्म, फुल्ली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए 1 मियोसिस चाहिए और 3 माइटोसिस चाहिए, कंफर्म है। ओके, एंड दिस डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर। ये जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है फ्री होता है, और बाद में फाइनली क्या होता है? जब ये सेल अरेंज होते हैं तब सेल वॉल बनता है। शुरुआत में सेल वॉल नहीं बनता, पहले प्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इमीडिएटली सेल वॉल नहीं फॉर्म होता, और बाद में जब ये सेल अलग अलग अरेंज हो जाते हैं, उनको से चेलाजल सेल, एगापेरेटस के सेल जब अरेंज होते हैं तब सेल वॉल बनता है। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज 7 सेल्ड, इसको क्या बोलेंगे फिर? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड क्या? एम्ब्रियो सैक। ऑलरेडी मैंने आपको बोला था 7 सेल कौन से? 3 + 1 + 3, और 8 न्यूक्लिया कौन से? 3 + 2 + 3। 7 सेल कौन से? 3 चेलाजल सेल, एंटीपोडल सेल 3, एक एपेंडिक्स के सेल और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस। 7 सेल थे, और न्यूक्लियार कौन से? चेलाजल की तरफ के 3, सेकेंड न्यूक्लियस के अंदर 2 और एक एपेंडिक्स के अंदर 3, मतलब न्यूक्लिया कितने हैं? 8 है। सो इन दिस वे फुल्ली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप। ओके, मतलब 8 न्यूक्लिया में से 3 ऊपर रहे, 3 नीचे आए, मतलब 3 ऊपर 3 नीचे छूट गए और 2 सेंटर में आ गए। ओके, रिमेनिंग 2 कम टू द सेंटर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लिया, और जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल एम्ब्रियो सैक कैसे होता है? 8 सेल तो है, 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस है। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? एक एपेंडिक्स का बाजू में मैंने बोला आपको, हर एक सेल का फंक्शन बताने वाला मैं अभी आपको। एक एपेंडिक्स क्या करता है? 1 प्लस सिनेप्टिक बनाता है, और वो कहाँ रहते हैं? माइक्रोपाइलर की तरफ। एक एपेंडिक्स प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि पोलरिटी वही से एंट्री होती है और वो एक के साथ फर्टिलाइज होती है, इसलिए एक एपेंडिक्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहता है, और उसके बाजू में 2 सिनेप्टिक्स है। सिनेप्टिक्स और स्पेशल सेलुलर थिकनिंग। सिनेप्टिक जो सेल है, सिनेप्टिक सेल जो है उसकी थिकनिंग स्पेशल रहती है, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus बोलते हैं इसको। स्पेशल थिकनिंग फॉर्म्ड ऑन द सिनेप्टिक इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और वो अट्रैक्शन करता है किसको? पोलन ट्यूब को। याद रखो, एक आप कंसीडर करते हो तो एक क्या है? दुल्हन है,
और ये दुल्हन की दो बहनें हैं ना, जो दुल्हन को गाइडलाइन करती है, सपोर्ट करती है, कौन? सेनेटरी सेल, और वो अट्रैक्शन भी करते हैं किसको? पोलन ट्यूब को, मतलब दूल्हे को, और एक की तरफ भेज देती है, जिसका मतलब फर्टिलाइजिंग के लिए पोलन ट्यूब एंट्री करने के लिए एक सेनेटरी सेल करता है, ब्रेक हो जाता है ना। द थ्री सेल्स ऑफ द चलाजिन और एंटीपोडल सेल का कोई भी फंक्शन नहीं है, ओके। और जो सेंट्रल सेल है लार्ज, पोलर सेल जो है, पोलर न्यूक्लिया जो है, जिससे क्या बनता है बाद में सेकंड न्यूक्लियस बनता है। तो फिर अगर डेवलपमेंट आपको क्लियर हो चुकी है, मेगास्पोरोजेनिस आपको क्लियर है, मेगागैमेटोजेनिस अगर क्लियर है आपको, ओके। सेंट्रल सेल के ऊपर मैंने आपको बोला सेल वॉल नहीं है, तो फिर अभी हम डिस्कस करते हैं क्या है मेगास्पोर डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। क्यों बोलते हैं मोनोस्पोरिक? क्योंकि एक ही मेगास्पोर सर्वाइव है, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीगोनम। और एंडोस्पोरिक टाइप, एंडोस्पोरिक क्यों बोलते हैं? डेवलपमेंट इन एंडोस्पोरिक मतलब इनसाइड द ओवल हो रहा है ना, डेवलपमेंट जो हो रहा है ओवल के अंदर हो रहा है, और स्पोर के अंदर न्यूक्लियस डेवलप होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक 1, एंडोस्पोरिक 2 और पॉलीगोनम 3। पॉलीगोनम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर मिनी न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं ना, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीगोनम। और याद रखो, अगर पॉलीगोनम टाइप है तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस कंफर्म है, इसमें पॉलीगोनल टाइप में। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका एम्ब्रियो साइट का, ओके। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो साइट में क्या होता है? दो टाइप बनते हैं, कौन से? पॉलीगोनल टाइप और यूनिथेरा टाइप्स। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो में क्या होता है? एम्ब्रियो साइट में क्या होता है? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो साइट में क्या होता है? दो टाइप बनते हैं, पॉलीगोनम और कोइनोथेरा, ऐसे दो। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं। वैसे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफोरिक होता है, आपको क्लियर हो गया अभी। मेगास्पोरोजेनिस कैसे होता है ये भी हो गया क्लियर, ओके। डायग्रामेटिकली टी डायग्राम निकाल रहा हूं यहाँ पे, टी डायग्राम निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको। आर्चिस्पोरियल सेल से क्या क्या होता है, डेवलपमेंट जो होती है तब। आर्चिस्पोरियल सेल, ओके। इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। इसमें आर्चिस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। और फिर दो लेयर बनते हैं, इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बनते हैं जो कि डिप्लॉयड रहते हैं, और आउटर प्राइमरी पैराइटल लेयर। तो ये पैराइटल लेयर से क्या बनते हैं? वॉल बनती है ना किसी ऑयल की। और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो है, इसमें से क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल बनता है, मेगास्पोर मदर सेल बनता है। इधर टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। बाकी मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है, ओके। आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल था, उसमें मियोसिस होता है। और 4 मेगास्पोर बनते हैं ना, क्या बनते हैं? 4 मेगास्पोर बनते हैं, मगर उसमें से एक ही मेगास्पोर फंक्शन हो जाता है। 4 मेगास्पोर में से एक ही मेगास्पोर फंक्शन हो जाता है, और उससे क्या बनता है? एक ही मेगास्पोर फंक्शन होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है, जो कि हैप्लॉइड है ना, ओके। मेगास्पोर भी कैसे थे? हैप्लॉइड थे। मेगास्पोर मदर सेल कैसे थी? डिप्लॉइड थी। तो अगर एम्ब्रियो सैक बनाने का है तो यहाँ पे एक मियोसिस होना चाहिए और 3 माइटोसिस होना चाहिए। 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस होने चाहिए। प्राइमरी पैराइटल सेल से क्या बनता है? ओव्यूल की वॉल बनती है। कौन सी वॉल? चलाजा, हाइलम, फ्यूनिकल जो स्टॉक है, चलाजा या फिर हाइलम, ये पार्ट बनते हैं ना, इससे प्राइमरी पैराइटल लेयर से। ये हो गया डेवलपमेंट इसका, ओव्यूल का कैसे डेवलपमेंट होता है, कौन से पार्ट से क्या होता है, डेवलपमेंट बताया मैंने आपको। बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम्ब्रियो साइट के टाइप। एम्ब्रियो साइट के बेसिकली 3 टाइप है। कौन कौन से? मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। इसके एम्ब्रियो साइट के 3 टाइप बता रहा हूं मैं आपको। मोनोस्पोरिक,
और याद रखो फ्लूइड नंबर ऑफ द एम्ब्रियो सैक पूछा गया आपके एग्जाम में, तो हेप्लॉइड बोलो, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल होते हैं हेप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बनता ही मेगास्पोर, मतलब हेप्लॉइड से बनता है ना। एम्ब्रियो सैक किससे बन रहा है? मेगास्पोर से बन रहा है, और मेगास्पोर के साथ हेप्लॉइड था, इसलिए फ्लूइड नंबर ऑफ द एम्ब्रियो सैक जो है वो हेप्लॉइड लेवल है ना, वो याद रखो। बाद में 3 टाइप के एम्ब्रियो सैक बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्या? एम्ब्रियो सैक, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? नंबर एक मोनोस्पोरिक, नंबर 2 बायस्पोरिक, और नंबर 3 टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक नाम में मीनिंग है, अगर 4 मेगास्पोर में से एक ही फंक्शन रहा तो मोनोस्पोरिक बोलेंगे, 4 मेगास्पोर में से 2 फंक्शन रहे बायस्पोरिक बोलेंगे, 4 मेगास्पोर में से 4 फंक्शन रहे ओके तो उसको बोलेंगे टेट्रास्पोरिक। और हमारा टारगेट कितना है? 8 न्यूक्लियस बनाने का टारगेट है, तो इसमें एक ही मेगास्पोर सर्वाइव होगा, इसमें 2 फंक्शनल मेगास्पोर रहेंगे और इसमें 4 मेगास्पोर रहेंगे। अच्छा 3-4 डेवलपमेंट है, तो मोनोस्पोरिक में क्या हो रहा है? 8 न्यूक्लिएटेड है, 7 सेलेड एम्ब्रियो सैक है ओके। मोनोस्पोरिक में क्या होता है? मोनोस्पोरिक में और 2 टाइप है, मोनोस्पोरिक में और 2 टाइप है। कौन कौन से? पॉलीगोनम और वाइनोथेरा। पॉलीगोनम टाइप और वाइनोथेरा टाइप, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पॉलीगोनम टाइप है उसमें पॉलीगोनम टाइप जो है मोनोस्पोरिक और पॉलीगोनम में क्या होता है? मोनोस्पोरिक और पॉलीगोनम टाइप में क्या होता है? एम्ब्रियो सैक जो है 7 सेल का और 8 न्यूक्लियस का बनता है। एक बात कंफर्म, मोनोस्पोरिक और पॉलीगोनम टाइप का जो मैंने डायग्राम निकाल के वाली वही है, जो डायग्राम मैंने निकाल के दी थी आपको तो वही है ओके। वैसे मोनोस्पोरिक और पॉलीगोनम टाइप की है ओके। मियोसिस डिवीजन कितने होते हैं यहाँ पे? मियोसिस डिवीजन कितने होते हैं यहाँ पे? मियोसिस डिवीजन कितने होते हैं? एक ही होता है। मियोसिस डिवीजन खाली एक ही होता है, कहाँ पे? एम्ब्रियो सैक 7 से 8 न्यूक्लियस है, पॉलीगोनम में मियोसिस डिवीजन कितना होता है? एक होता है। बाद में माइटोसिस डिवीजन कितने होते हैं? माइटोसिस डिवीजन कितने होते हैं? 3। बोला था ना मैंने अभी आपको, पॉलीगोनम टाइप में माइटोसिस डिवीजन कितने होते हैं? 3। नंबर ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर कितने? नंबर ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर कितने? फंक्शनल मेगास्पोर कितने? 1। फंक्शनल मेगास्पोर कितने रहेंगे? 4 में से एक ही है ना, क्योंकि मोनोस्पोरिक बोल रहा हूं ना। मोनोस्पोरिक का मतलब 4 मेगास्पोर में से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, इसलिए फंक्शनल मेगास्पोर ओनली 1। देन क्लॉइडिया ऑफ एंडोस्पर्म कैसा रहेगा? क्लॉइडिया ऑफ एंडोस्पर्म कैसा रहेगा? ट्रिप्लॉइड ओके। एंडोस्पर्म का नेचर, एंडोस्पर्म का नेचर कैसा रहेगा? ट्रिप्लॉइड। अपन ट्रिप्लॉइड जैसे सर सेकेंडरी न्यूक्लियर डिप्लॉइड था प्लस एक मिल गया बेट, मतलब ट्रिप्लॉइड बन गया। और एंडोस्पर्म जाइगोट कैसा रहेगा? जाइगोट डिप्लॉइड। क्यों डिप्लॉइड? क्योंकि एक डिप्लॉइड था, मिल गया में डिप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, फिनिश। और फिर एंटीबॉडी कितने हैं? 3 100%। और फिगर आप देखते हो, इसकी फिगर देखते हो तो मैंने आपको जो फिगर निकाल के दी थी मोनोस्पोरिक की, ऐसी फिगर है इसकी ओके। ये 3 एंटीबॉडी है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और ये 3 क्या है? एक एपेटस है। तो ये क्या हो गया? मोनोस्पोरिक पॉलीगोनल टाइप का हो गया ना एम्ब्रियो सैक ओके। देन मोनोस्पोरिक वाइनोथेरा में क्या होता है? मोनोस्पोरिक वाइनोथेरा में क्या होता है? ये थोड़ा चेंज होता है। इसमें मोनोस्पोरिक वाइनोथेरा में क्या होता है? याद रखो, इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक जो है 4 सेलेड होता है, 4 न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें वाइनोथेरा में बोल रहा हूं, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर 4 सेल और 4 क्या? न्यूक्लिएटेड। सेल 4 है, न्यूक्लियस भी 4 है ना? 4 सेल 4 न्यूक्लियस। नंबर ऑफ मेयर्स कितना होगा? नंबर ऑफ मेयर्स कितने होंगे? 1। कहां पे? वाइनोथेरा में। बाद में नंबर ऑफ माइटोस कितने होंगे? नंबर ऑफ माइटोस कितने होंगे? 2 वाइनोथेरा में। नंबर ऑफ मेयर्स 1, नंबर ऑफ माइटोस 2, और फंक्शनल मेगास्पोर कितने होंगे? 1।
नंबर ऑफ माइटोसिस, नंबर ऑफ मेयोसिस एक हो गया, नंबर ऑफ माइटोसिस 2 हो गए। फंक्शनल मेगास्पोर कितना बनेगा? एक ही बनेगा। फंक्शनल मेगास्पोर एक ही बनेगा। ओके, कहां पे बोल रहा हूं? ओइनोथेरा में बोल रहा हूं। बाद में फंक्शनल मेगास्पोर एक ही है। बाद में प्लॉइडियम एंडोस्पर्म कैसा है? डिप्लॉयड है। एंडोस्पर्म का प्लॉइडियम कैसा है? डिप्लॉयड है। क्यों बोले डिप्लॉयड? डिप्लॉयड क्यों है भाई? क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस सेपरेट रहता किसमें? तो यहाँ पे नेचर कैसा रहेगा? फिर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? ओइनोथेरा में। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो ओइनोथेरा में। ये स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। ये क्या है? ये apparatus है जिसमें 3 सेल है और सेंटर की क्या है? सेंटर की एक ही सेल है ना, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है ना। ये क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा था भाई? डिप्लॉयड था। ये बेसिकली डिप्लॉयड थे। तो फिर एंडोसोम कैसा बनेगा? डिप्लॉयड बनेगा ना। कहां पे? ओइनोथेरा में। ओइनोथेरा में सेकंड न्यूक्लियस डिप्लॉयड थी, बाद में एक मेल गैमेट आएगा और डिप्लॉयड क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। वैसे जायगोट भी डिप्लॉयड बनेगा। क्यों? जायगोट तो डिप्लॉयड बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डिप्लॉयड है, मेल गैमेट डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड जायगोट बनेगा ओइनोथेरा में। फिनिश। एंटीपोडल कितने? 0। नो एंटीपोडल्स। यहाँ पे एंटीपोडल 3 थे ना, यहाँ पे एंटीपोडल नहीं है। तो ये स्पेशलिटी है किसकी? मोनोस्पोरिका और ओइनोथेरा की। क्या स्पेशलिटी है बोल रहा हूं? एंटीपोडल नहीं है, एंडोस्पर्म डिप्लॉयड है और एक जायगोट है जो डिप्लॉयड है। बस ये 3 कैरेक्टर याद रखो ओइनोथेरा के, इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर बायस्पोरिक कंडीशन है तो क्या होगा? बायस्पोरिक कंडीशन है तो क्या होगा? एम्ब्रियो सैक में क्या होगा? 7 सेल 8 न्यूक्लियस होंगे। इसमें बायस्पोरिक में 7 सेल 8 न्यूक्लियस होंगे। वैसे के वैसे। नेक्स्ट, बाद में मियोसिस डिवीजन कितने होंगे? यहाँ पे मियोसिस डिवीजन कितने होंगे? मियोसिस डिवीजन खाली 2 होंगे, तो फिर 1 होगा। मियोसिस डिवीजन 1 होगा, मगर माइटोसिस डिवीजन कितने होंगे? माइटोसिस डिवीजन होंगे 2। क्यों 2? क्योंकि ऑलरेडी एक था क्या? मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें से फंक्शनल मेगास्पोर अगर 2 सरवाइव होते हैं, ओके, तो उसमें ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है ना, तो मियोसिस डिवीजन कितने हो गए? 1। माइटोसिस डिवीजन कितने हो गए? 2। 2 क्यों बोल रहा हूं मैं? 2 क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे मैं? माइटोसिस डिवीजन यहाँ पे 2 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी अगर मेगा मोनोस्पोरिक में क्या था? एक न्यूक्लियस था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनाने के लिए 3 माइटोसिस देते ना। यहाँ पे ऑलरेडी 2 है ना, यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है? 2 मेगास्पोर ऑलरेडी रहते हैं, 2 मेगास्पोर ऑलरेडी रहते हैं। इसलिए फिर क्या होता है? हाँ, क्या क्या बोला मैंने? एम्ब्रियो सैक कितने बोला? 7 से 8 न्यूक्लियस। मियोसिस कितना बोला? मियोसिस कितना होता है? 1। माइटोसिस कितने होते हैं? माइटोसिस कितने होते हैं? 2। क्यों 2? क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ बायस्पोरिक कंडीशन है, मतलब ऑलरेडी 2 मेगास्पोर सराउंड होते थे। 2 अगर 2 होते हैं तो फिर 2 से 4 बनाने के लिए पहला माइटोसिस और 4 से 8 बनाने के लिए दूसरा माइटोसिस। फिनिश। माइटोसिस कितने होंगे फिर? यहाँ पे 2 होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाद में फंक्शनल मेगास्पोर कितने होंगे? फंक्शनल मेगास्पोर कितने होंगे? 2। कहां पे? फंक्शनल मेगास्पोर जो है, नाम ही बायस्पोरिक है ना, तो फंक्शनल मेगास्पोर कितने होंगे? 2। यहाँ पे कितने थे फंक्शनल मेगास्पोर? मोनोस्पोरिक में 1 था ना, और यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर 2 रहेंगे। तो नो डाउट अगर फंक्शनल मेगास्पोर 2 है तो फिर वहां पे एंडोस्पर्म तो डिप्लॉयड है, जायगोट डिप्लॉयड होगा और बाकी एंटीपोडल डिप्लॉयड रहता है और नॉर्मल डेवलपमेंट जैसे होती है। खाली आपको ये बताना है कि बायस्पोरिक कंडीशन है अगर, तो मियोसिस 1 चाहिए और माइटोसिस 2 चाहिए बस, इसके लिए एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए। और टेट्रास्पोरिक में क्या होगा? टेट्रास्पोरिक में थोड़ा सा अलग है। क्या है अलग? एम्ब्रियो सैक कैसा है? 7 सेल है। एम्ब्रियो सैक कैसा है? 7 सेल है। बाद में 8 न्यूक्लियस है, सेम। ओके, नंबर ऑफ मेयोसिस कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ मेयोसिस 1 होगा। नंबर ऑफ माइटोसिस भी 1 ही होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि ऑलरेडी टेट्रास्पोरिक बोल रहा हूं मैं, मतलब यहाँ पे बायस्पोरिक मतलब क्या था? 2 मेगास्पोर सराउंड होते थे, यहाँ पे ऑलरेडी 4 मेगास्पोर सराउंड हो रहे हैं ना। अगर 4 मेगास्पोर सराउंड होते हैं तो 4 से 8 बनाने के लिए 4 से 8 बनाने के लिए 1 ही माइटोसिस सफिशिएंट है बस। बाकी तो पूरा सेम है। एंडोस्पर्म डिप्लॉयड है, जायगोट डिप्लॉयड है, एंटीपोडल 3 है, बस हो गया। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। और इन दिस वे द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट
डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और पूरे पार्ट बताया मैंने। अभी और एक पार्ट बताने वाला हूँ। अभी ओव्यूल के जो पार्ट्स है, हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, ओव्यूल के जो पार्ट्स है हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, मैंने आपको डायग्राम निकाल के दी थी ओव्यूल की। ओके, ओव्यूल की डायग्राम आपको पता है क्या है ओव्यूल में, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, कौन सा ओव्यूल, अनाट्रोपस ओव्यूल, अनाट्रोपस ओव्यूल। उसमें क्या क्या है, सबसे अंदर सेंटर में एम्ब्रियो सैक, उसके बाहर न्यूक्लियस, उसके बाहर इंटरमेंट, ये स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज स्ट्रक्चर और दिस इज व्हाट फ्यूनिकल। तो हर एक पार्ट का मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर और फंक्शन बता रहा हूँ ना, लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करो, हर एक पार्ट का स्ट्रक्चर फंक्शन बता रहा हूँ। स्टार्टिंग करता हूँ फ्यूनिकल से, स्टार्टिंग करता हूँ फ्यूनिकल से। व्हाट इज फ्यूनिकल, फ्यूनिकल इज नथिंग बट द स्टॉक ऑफ ओव्यूल which provide support, which provide what, conducting tissue for the food and water, conducting tissue रहता है इसके अंदर, conducting tissue रहता है जो food and water conduct करता है, सप्लाई करता है किसको, डेवलपिंग ओव्यूल को। तो ये फ्यूनिकल, फ्यूनिकल कॉल्ड है स्टॉक। फ्यूनिकल क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। मैंने बोला था आपको अगर फ्यूनिकल है तो उसको फ्यूनिकुलेट बोलेंगे, नहीं है तो सेसाइल बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, बाद में ये जो ऊपर का पार्ट है, सोलन पार्ट है, इसको बोलते हैं बॉडी। और बॉडी में क्या क्या है, बॉडी में क्या क्या है, मैंने बोला था जहां पे फ्यूनिकल और बॉडी अटैच होती है उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम। अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद बॉडी कॉल्ड हाइलम, राइट। हाइलम के ऊपर क्या है, रैफे। व्हाट इज रैफे, अनाट्रोपस ओव्यूल में होता है रैफे। स्कार है, अटैचमेंट है, परसिस्टेंट पार्ट है ओव्यूल के ऊपर रहता है और उसको रैफे बोलते हैं। और बाद में क्या है, ये चला जा, चला जा, बड़ी चला जा, दिस इज कॉल्ड एज बेस ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का बेस है और जहां से क्या होता है, इंटरमेंट का ओरिजिन होता है ना, इंटरमेंट का ओरिजिन होता है, इंटरमेंट फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और क्लोज करते हैं किसको, न्यूक्लियस को। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, जिसके अंदर डिप्लॉइड सेल रहते हैं और वो क्या करता है, नरिश करता है किसको, न्यूक्लियस नरिश डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट, स्टोर होता है रिजर्व फूड इसके अंदर और नरिशमेंट करता है किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को, कौन, न्यूक्लियस, जिसके अंदर मेगास्पोर फॉर्मेशन का प्लेस है, इसलिए उसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, किसको, न्यूक्लियस को। कभी कभी आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियस का बाद में क्या बनता है, पेरिस्पर्म बनता है, थिन लेयर बनता है, इसलिए उस सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, ब्लैक पेपर। न्यूक्लियस का कन्वर्शन पेरिस्पर्म में बनता है और उस सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, ब्लैक पेपर एग्जांपल है। ओके, न्यूक्लियस नरिश करता है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है, डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, 7 सेल है, उसमें से 3 सेल एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल कैसे डिप्लॉइड है और उसका फंक्शन अननोन है, नॉट हैविंग एनी फंक्शंस, एंटीपोडल, दे गेट डिजेनरेट्स, destroyed when after fertilization. Okay, बाद में group of 3 cells present towards micropyle, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। आप बोलेंगे सर माइक्रोपाइल की क्या क्या फंक्शन है, शायद मैंने आपको कल बताया था। माइक्रोपाइल के 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, दूसरा फंक्शन जब सीड बनता है सीड, तो सीड में से क्या होता है, बाहर से अंदर वाटर जाता है, ऑक्सीजन जाता है और फिर सीड में से रेडिकल भी बाहर आता है, कहां से, माइक्रोपाइल से। इसलिए माइक्रोपाइल के 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, सेकंड फंक्शन एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग सीड जनरेशन, तीसरा फंक्शन इमर्जेंस ऑफ रेडिकल थ्रू माइक्रोपाइल ड्यूरिंग सीड जनरेशन, फिश। दिस इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल। द नेक्स्ट इज व्हाट, egg cell. What is egg? Egg is haploid cell. Haploid, single, large, middle, female gamete is called as egg. और फिर आपको पता होगा egg के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फिर क्या बनता है, जायगोट बनता है ना, और जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना, और उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, सिंग्यामी बोलते हैं। इसको एक के साथ अगर मेल गैमेट फ्यूज होता है तो उसको बोलते हैं सिंग्यामी, उसको बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बनने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो सीड के अंदर फॉर्म होता है, फिनिश। बाद में दो साइड के 2 कोन है, सिलिंड्रिड्स। ऑलरेडी आई टोल्ड यू सिलिंड्रिड्स क्या है, 2 लैटरल
हैप्लॉइड सिस्टर सेल्स, सपोर्टिंग सेल अपना सिनेटिड्स, और सिनेटिड्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। सिनेटिड्स क्या करते हैं, फिलीफॉर्म apparatus बनाते हैं। सिनेटिड्स क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं किसको, पोलन ट्यूब को, गाइड करते हैं किसको, पोलन ट्यूब को किधर जाने के लिए, एम्ब्रियो साइट की तरफ जाने के लिए कौन, सिनेटिड्स गाइड करते हैं। तो इस तरीके से सिनेटिड्स का फंक्शन खत्म हुआ। और सेंटर में क्या है, सेंटर में क्या है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड है, जिसको हम सेकंड न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, डेफिनेटिव न्यूक्लियस, सेकंडरी न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड है। और फिर सेकंड न्यूक्लियस के साथ सेकंड फीमेल गैमेट है ये, इसके साथ अगर मेल गैमेट कुछ होता है तो फिर क्या होता है, सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज विद सेकंड मेल गैमेट कॉज सेकंड फर्टिलाइजेशन, एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है, इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उससे बनता है एंडोस्पर्म। फिनिश। इसका मतलब एम्ब्रियो कैसा था, डिप्लॉयड था, और एंडोस्पर्म कैसा है, ट्रिपलॉयड है। इस तरीके से ओव्यूल का कन्वर्शन कैसे होता है, फाइनली ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइज चेंजेस जो होते हैं, ओव्यूल का कन्वर्शन सीड में होता है मैच्योरिटी आने के बाद, इसलिए सीड इज कॉल्ड एज राइपन्ड एंड मैच्योर ओव्यूल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोला है ना सीड को। और फिर जैसे ओव्यूल से सीड बनता है वैसे ओवरी से फ्रूट बनता है, और जैसे फ्रूट बनता है फ्लावर के पूरे पार्ट चले जाते हैं, ओके, गिर जाते हैं, विड्रॉल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और खाली ओवरी रहता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, और ओव्यूल से फिर ये अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन होते हैं ना। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड फंक्शन ऑफ ओव्यूल। पूरे आपको ओव्यूल के अंदर के जो पार्ट है उस सभी के स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया, ओके। और सपोज ये ओव्यूल मतलब क्या है, एक फीमेल का गांव है, और यहाँ पे क्या होता है, फीमेल के गांव में ये दूल्हा बारात लेके आता है। यहाँ पे दूल्हे कितने हैं, दो है, दो दूल्हे मतलब दो मेल गैमेट है, और वो दो मेल गैमेट एंट्री करते हैं कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो साइट के अंदर। और पहला मेल गैमेट एक के साथ, दूसरा मेल गैमेट सेकंड न्यूक्लियस के साथ, ये दोनों दूल्हे का दोनों दुल्हन के साथ फ्यूजन होता है, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक पे फ्री, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, सेकंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एग एंड स्पर्म, सेकंड फर्टिलाइजेशन सेकंड न्यूक्लियस प्लस स्पर्म। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन दो जगह पे होता है, इसलिए उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज द peculiar characteristic of angiosperm। ठीक है, तो मैंने आज आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और पार्ट ऑफ ओव्यूल, इसके साथ डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, ये सब पार्ट आपको पढ़ा है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू टुमारो। Flowers also happen to be the site of sexual reproduction, as they contain the androecium and gynoecium, the male and female reproductive organs of a plant. You can see many variations in the gynoecium of different flowers. For example, the gynoecium can be monocarpous, consisting of a single pistil or carpel. Or it may be multicarpous, in which case we see several pistils in a single flower. Moreover, a multicarpellary gynoecium may be apocarpous, that is, the pistils are free, or syncarpous, where the pistils are fused. If you observe the structure of a pistil, you will find that it consists of the stigma at the tip, followed by the style in the middle and an ovary at the base. While the stigma is a landing platform for pollen grains, the style, an elongated slender structure, connects the stigma to the ovary, the basal bulging part of the pistil. Morphological studies of the ovary have revealed
that it contains one or more cavities called locules, or ovarian cavities that are surrounded by an ovary wall. Within the locule, you will find ovules or megasporangia that are attached to the ovary wall in a region called the placenta. These ovules may be arranged in free central, axial, marginal, parietal, or basal placentation. Moreover, after fertilization, the ovules form seeds while the ovary develops into a fruit. Did you know that different flowers of different plant species have a varying number of ovules in their ovaries? A peach, for instance, develops from an ovary containing a solitary ovule. A papaya, on the other hand, has several ovules in its ovary, and that's why you see numerous seeds in the fruit when it is split open. The ovule, considered by botanists as the forerunner of the seed, has an oval or egg-shaped body. It remains attached to the placenta by a stalk called the funicle. In fact, the ovule's body fuses with the funicle in a region called the hilum. The ovule is well protected with one or two protective coverings called integuments. These integuments later form the seed coat. The integuments cover the entire ovule except at the apex, where they form a narrow opening called the micropyle. Did you know that the micropylar end acts as an entry point for the pollen tube during the process of fertilization? While the micropyle forms one end of the ovule, the chalaza forms the basal part of the ovule. At the chalazel region, we find that the funicle and integuments join the nucellus, the center region of the ovule that's made of a mass of diploid, colorless, thin-walled, parenchymatous cells containing food reserve materials. In the nucellus of a mature ovule lies the embryo sac, the female gametophyte, which develops from a megaspore. This megaspore is formed when one of the nucellus cells, towards its micropylar end, gets differentiated into a megaspore mother cell, which can be easily distinguished from other cells due to its large size, dense cytoplasm, and prominent nucleus. The megaspore mother cell undergoes meiosis to form 4 megaspores which arrange themselves in a linear tetrad. This process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. Of the 4 megaspores, usually the one near the chalazel end becomes functional, whereas the other 3 near the micropylar end degenerate. The functional megaspore enlarges and simultaneously undergoes mitotic division to form an embryo sac. This type of formation of the embryo sac from a single megaspore is known as monosporic development. While undergoing these mitotic divisions, the nucleus of the functional megaspore first divides to form 2 nuclei, which move to the 2 opposite ends of the embryo sac. This is the 2-nucleate stage of the embryo sac. The mitotic divisions continue
and result in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac. A mature embryo sac thus has 8 nuclei after 3 mitotic divisions, which are arranged in a group of 4 at each end of the embryo sac. Interestingly, the mitotic divisions that occur in the megaspore's nucleus are free nuclear, which means the division of the nuclei doesn't immediately trigger cytoplasmic division and cell wall formation. Instead, we see the formation of cell walls only after the 8 nucleate stage, due to which 6 of the 8 nuclei organize into cells. The 2 remaining nuclei, called polar nuclei, migrate to the center of the embryo sac. Thus, we find the embryo sac to be in 7-celled and 8 nucleate stage with 6 cells at the poles and a large central cell with 2 nuclei in the center. Meanwhile, the 6 cells organize to form the typical structure of the embryo sac, which is now ready for fertilization. The 3 cells present at the chalazial end, for instance, group together to form the antipodal cells, which do not have any specific function, whereas the 3 cells at the micropylar end group together to form the egg apparatus. While one of the cells functions as an egg or the female gamete, the other 2 cells are called synergids. If you observe the micropylar tip of the synergids, you will notice special cellular thickenings called a filiform apparatus that guides the pollen grains into the synergid. The synergids, as well as other cells, form the embryo sac, the female gametophyte born inside the pistil. Flowers are mainly responsible for bringing about fertilization and seed formation. To facilitate fertilization, it is necessary that the male gametes inside the pollen grains and the female gamete inside the ovule are brought together. However, since the gametes are immotile, pollen grains